Screen is visible to all of you now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, this is the topic which I had selected for all of you to start with our interaction. You know, I won't be teaching you this subject in this semester. We will be teaching this subject in the coming semesters. But this year, this semester, I will be teaching business communication. So anyway, our topic begins has the basic. This topic which we have to discuss today is very much relevant. You know, the whole world has come to a halt. Most of the economic activity and the life has come to standstill. So now, how can we prepare ourselves for such situations? Before going into the detail, first we have to understand what is disaster and what is the disaster management. Can anybody tell me what is the disaster? What do we actually mean by disaster? If suppose I give you one example. Yes. Yes. Ma'am, disaster is any unforeseen situation which disrupts the normal life or normal daily life of the place in which of the people in which it is happening, or the it affects the economy, the social life, the daily life of people. Very true. But this what are you explaining? It almost covers the basic aspect of this. Can I request each one of you to please maintain the decorum? Okay. I think you all are very intelligent and very wise and intelligent students, and you understand what I am saying. So please, this is the last time I am telling you, please don't do this. Be careful that any extra voice does not disturb the class, running of the session. Okay? Is this my request clear to all of you? Can we start now? Okay. Ma'am, So, please allow the student. oh, maybe. All of have joined? One is left. So, as I was telling you, what is a disaster? Disaster is if you otherwise the definition of disaster has been given in the Disaster Management Act 1985, and that act clearly defines what a disaster is. अगर हम layman terms में बात करें तो disaster जो होता है, it is any event or any happening of occurrence of grave nature. It is what is most important, that it has to be a grave nature where many grave consequences takes place. What are those consequences? Either there is a loss of life, or there is a injury, or there is a destruction, or there is a any issue of very high magnitude, and the affected community is not, that total impact is beyond the coping capacity of that community. It cannot come out of that situation without the help of external intervention. Okay, is this point clear? Disaster क्या, देखिए क्या होता है, कई बार आप घर में क्या करते हो, आपका हाथ जल जाता है, खाना बनाते टाइम क्या होता है, आपका हाथ जल जाता है, तो व्हाट डज इट शो? ये हैजर्ड है. तो हर डिजास्टर जो होता है वो बेसिकली हैजर्डस नेचर का होता है. हैजर्डस नेचर मींस कि जिसमें कैपेबिलिटी हो आपको हार्म पहुंचाने की. बट एवरी हैजर्डस इवेंट इज नॉट अ disaster.
घर में जैसे क्या हो गया, आपका काम करते टाइम आपका हाथ से ब्लेड कट जाता है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ हैजर्डस इवेंट, बट इज इट अ डिजास्टर? क्या ये डिजास्टर है? नो। क्या आप चल रहे हैं सड़क पर, ठीक है, आप फिसल गए, यू स्लिप्ड एंड यू फेल, आपको चोट लगी, आपको ग्रेव इंजरी भी हो सकती है, तो इज इट अ डिजास्टर? नो, इट इज नॉट अ disaster. So what is important for an event to become a disaster? उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट हैज टू affect a large number of people, and when we talk of large number of people, that is known as community. एक community को impact करना चाहिए. Is it clear? And second important thing is the impact of that event is of grave nature. Grave nature means, what do we mean by grave nature? Grave nature means, yes, grave nature का मतलब है it should have devastating impact, it should have destructive impact, it should be very hazardous in nature and very harmful. जो इवेंट हार्मफुल नेचर का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं. बट हर एक, कहीं भी एक आइसोलेशन में कोई इवेंट हो रहा है तो इट कैन नॉट बिकम अ डिजास्टर अनलेस अंटिल इट अफेक्ट्स अ कम्युनिटी. सपोज आपको पता है अर्थक्वेक, एवरी टाइम देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अर्थक्वेक टेकिंग प्लेस इन अवर in the sea beds on or in the lonely areas, but are they disastrous? Do they convert into disaster? No, they are hazardous in nature, but they will become disaster only when they will impact the community. जहां पर लोग रहते हैं वहां पर अगर कोई ऐसी सीरियस नेचर का कोई इवेंट होता है जिससे लोगों को इंजरी होती है या लोगों की लाइफ का लॉस होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है, रेलवे लाइन उखड़ गई या पानी भर गया हर जगह पर, कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया, तो ऐसे इवेंट जो होते हैं उनको हम डिजास्टर्स बोलते हैं. इज दिस major definition of disaster is clear? So can we now read our definition about the disaster? Please allow that student Vinayak, he is waiting in lobby. Okay. Yes, I have admitted him. So is this basic point clear, what I was discussing with you about the disaster? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Now let us read the definition. Now, disaster is a serious event or a calamity of a grave occurrence which can be due to. Now there is one more thing. Disaster not natural, not only they are natural like earthquake हो गया या लैंडस्लाइड हो गया या जैसे बुश फायर है आजकल कैलिफोर्निया में, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, देयर इज अ बुश फायर एंड इट इज ईटिंग million hectares of the forest land and it is adding to the global warming. That is also a natural. The cause can be natural, the cause can be man made, और man made भी बहुत different type के भी disaster होते हैं. One are intentional, कुछ जानबूझ के हम लोग disasters करते हैं, जैसे terrorism है. Terrorism is also an example of disaster, but it is intentional. There are certain man-made disasters which are unintentional. Can you name any disaster which is unintentional? Yeah, accidental. Ma'am, gas leak हुई थी. Ma'am, gas leak हुई थी. कोरोना वायरस. Leak हुई थी. बेटे कोरोना वायरस we will discuss के what हम क्या उसको man-made बोलेंगे या natural बोलेंगे. We will I will explain it to you. ठीक है? और कोई मुझे एग्जांपल दो, जैसे मैम गैस लीक. हाँ मैम गैस लीक हुई थी ना. भोपाल गैस लीक. that is due Yes, to ma'am. the technical error.
वो उसको टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर बोलते हैं। मैं ऐसा बोल रही हूँ तो बिल्कुल मैन मेड है पर अनइंटेंशनल है, बिल्कुल अनइंटेंशनल। बोलो बोलो मैम डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन तो बेटे इट इज मैन मेड डिजास्टर, इंटेंशनल है क्योंकि हम ही फॉरेस्ट क्लियर करते हैं तभी डिफॉरेस्टेशन। लैंडस्लाइड्स इज नेचुरल, इट इज नॉट मैन मेड। आई वांट एन एग्जांपल जो ग्लोबल वार्मिंग। हाँ यस, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज मैन मेड डिजास्टर, मैन मेड, man made. It is I'm saying man made but fire at a factory or somewhere. that is वो तो मिस्टेक से होता है बेटे, अनइंटेंशनल। जैसे आप बहुत बार क्या होता है रेल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है ना, ट्रेन जो होती है वो कर जाती है, दो ट्रेन्स जो हैं वो टकरा गई, मतलब नो डाउट दे आर एक्सीडेंट मैन मेड बट दे आर एक्सीडेंटल, कोई जानबूझकर नहीं करता है। जैसे मैंने आपको टेररिज्म का एग्जांपल दिया है, तो टेररिज्म में क्या है, इट इज प्योरली इंटेंशनल, इट इज कैरिड आउट बाय द ह्यूमन बीइंग, अ सर्टेन ग्रुप ऑफ द पीपल with the intention to harm the society. So what I mean to say that man-made disaster can be intentional or unintentional also, ठीक है। Now that causes widespread human, material, economic and environmental loss. Environmental loss भी होता है, जैसे आप मुझे बता सकते हो कोई ऐसा डिजास्टर जिसे environmental, any example? मैं ऐसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन इज आल्सो अ डिजास्टर which is caused by the deforestation and it leads to loss of the upper layer of the soil, so that is also a environmental disaster. Floods आते हैं, flood में क्या होता है, there is water logging, there are lot of diseases they rise due to the flood, that is also environmental loss. Then there अगर हम bush fire की बात कर रहे हैं तो bush fire leads to monumentous environmental loss. And now what is the next criteria for a disaster, that it exceeds the capacity of the community to cope with. वो कम्युनिटी अपने आप किसी डिजास्टर से बाहर नहीं आ सकती। व्हाट इज रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल इंटरवेंशन, बाहर की हमें जरूरत है, कोई एक्सट्री बॉडी की जरूरत हो। जैसे डिजास्टर में क्या होता है, अब ये देखिए कोविड है, जो कोविड, क्या हम लोग अपने आप कोविड से बाहर आ सकते हैं अगर गवर्नमेंट हमें हेल्प ना करे? अगर गवर्नमेंट ने इतने स्टेप्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं की होती तो क्या हम इस टाइम कोविड, अभी तो वैसे हम कोविड फ्री नहीं हुए हैं, तो पर क्या हम सोच सकते थे कि हमारी कंट्री की क्या हालत होती? सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन डिजास्टर, एक्सटर्नल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, बाहर की हेल्प की जरूरत होती है ताकि वो कम्युनिटी उस सिचुएशन से बाहर आ सके। तो दीज आर दी दिस इज दी what is the concept of disaster. Next point is what is disaster management. Ab is second this next slide is visible to all of you? Yes. No. Yes, ma'am. Okay. Am I also visible to you or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. So what is disaster management? देखिए disaster management कोई एक step नहीं है. It is the many steps they have to be taken in order to achieve the objective of disaster management. So क्या है, what are the steps? आपको प्लानिंग भी करनी है, आपको ऑर्गेनाइज भी करना है, हमें कोऑर्डिनेट भी करना है और हमें इम्प्लीमेंट भी करने हैं वो सारे मेजर्स जो जिनका उन मेजर्स का एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव, ऑल दीज एक्शंस विद द ऑब्जेक्टिव्स इज नोन एज डिजास्टर मैनेजमेंट. So what is, first we have to understand what is the objective of disaster management.
देखिए डिजास्टर में पहले मुझे बताओ, मैंने आपको क्या क्या बताया कि क्या क्या लॉस होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। डिजास्टर में क्या क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल लिस्ट द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर? व्हाट इज इम्पैक्ट? Loss of life, loss of property. वेरी गुड। और लॉस किसका है? Loss of loss of resources. environment. यस। और क्या चीज होती है? Economic loss. Economic loss. Economic loss. इकोनॉमिक्स लॉस, हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, ठीक है ना। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट का है पहले ह्यूमन लाइफ को सेव करना, ठीक है ना। अगर लोग मर जाएंगे तो हमारा, अगर हम डिजास्टर मैनेज कर रहे हैं और हमारे क्योंकि देखिए जो नेचुरल डिजास्टर है वो तो रिकरिंग रहते हैं, ठीक है ना। हर साल साइक्लोन आता है, हर महीने अर्थक्वेक होते हैं, कभी कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पर एक्सप्लोजन हो रहा है, कहीं पर टेररिज्म हो रहा है। तो डिजास्टर्स जो हैं वो दे आर ऑफ साइक्लिकल नेचर, आते रहते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है कि जितने टाइम पीछे जो डेथ्स हुई, आगे डेथ्स कम होनी चाहिए। लोग जितनी इंजरी पहले हो गई, हमारा पर्पस ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इंजरीज कम हो लोगों को, लोग मरे नहीं, हमारा लाइफ स्टॉक भी सेव रहे, ह्यूमन को कम इंजरीज हो, सफरिंग, ह्यूमन सफरिंग्स कम हो। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा इकोनॉमिक लॉस होता है, तो इसलिए हमें डैमेज से बचाना है। हम ये चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन सेटअप भी इंटैक्ट रहे, हमारी ट्रांसमिशन भी इंटैक्ट रहे, हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी इंटैक्ट रहे, पीने का पानी भी लोगों को मिलता रहे, खाना भी मिलता रहे। तो ये जो है, क्योंकि जब डिजास्टर आते हैं तो ये हमारी जो बेसिक हमारा फैसिलिटीज हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। देयर इज अ ब्रेक इन द बेसिक अमेनिटीज। जहां पर आप देखेंगे अभी बीइंग बिकॉज वी लिव इन दिल्ली, तो हम लोगों ने अभी कोई बिफोर प्रायर टू दिस कोविड वी हैव नॉट सीन मेजर डिजास्टर। अगर हम उन एरियाज में रहते जो डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं, जहाँ पर फ्लड्स वगैरह आते हैं, अगर आप उड़ीसा या केरला या चेन्नई वगैरह में या मुंबई में रहते तो आप हमें आइडिया होता कि डिजास्टर जो है वो कैसे लाइफ को टोटली एब्रप्टली स्टॉप कर देते हैं। तो हमें एक लाइफ को, प्रॉपर्टी को बचाना है और हमें सबको लाइफ के लॉसेस को सिक्योर करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंस और क्या करना है हमें डिजास्टर मैनेज में, हमें रिकंस्ट्रक्शन करनी है। जो चीजें हमारी ब्रेक हो जाती हैं, ये जैसे जो पाइपलाइन जो डैमेज हो गई या पानी की सप्लाई जो बंद हो गई, उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। रिहैबिलिटेट का क्या मतलब है? रिहैबिलिटेशन का क्या मीनिंग है? जैसे जो लोग, कई बार क्या होता है इवैक्यूएशन, जब बहुत लार्ज स्केल पर जहां पर नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, अर्थक्वेक आता है, वहां पर लोग जो हैं उनके घर जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, घर जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो लोगों को उससे निकाल कर एक सेफ जगह में वहां से इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर मूव किया जाता है। तो उनको फिर वहां से दोबारा से उनको उनकी जगह पर जहां उनका हाउस है या जहां पर उनका होम है, वहां पर उनको दोबारा से वहां पर मूव करना और उनका रूटीन एक्टिविटी लाइफ की स्टार्ट करने में हेल्प करने को रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। सो रिहैबिलिटेशन भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद क्या है कि हमें पता है कि इस जगह पर, यहाँ पर हर साल जो है, यस यस Ma'am, please repeat the meaning of rehabilitation. Rehabilitation का क्या मीनिंग होता है? सपोज टुडे, सपोज we are sitting, you are watching you are participating in orientation program. Good, कर रहे हैं हम लोग, we all are gathered and we are, अब हमारे लिए ये क्या है? अब एक रूटीन एक्टिविटी है, ठीक है ना। Now suppose if any disaster come, suppose there is a fire, ठीक है, तो what will happen?
हमारा जो रूटीन एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है कि मींस आई एम गिविंग अदर एग्जांपल, डोंट टेक दिस एग्जांपल। मींस सपोज देयर इज अ फायर एनीवेयर, so what will happen? People will have to be moved to the hospitals, so they will be treated. Then some of the persons, they may have any psychological impact of that disaster, so they will have to be treated psychologically. तो लोगों को दोबारा से उनकी रूटीन लाइफ में शिफ्ट करना इज नोन एज रिहैबिलिटेशन। जो उनके घर जो टूट गए, उनके घर को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करवाना, वाटर की सप्लाई को रीएस्टैब्लिश करना, उनको ये देखना कि उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी आए, जो बेसिक एमेनिटीज जो बिफोर डिजास्टर या प्री डिजास्टर में जो वो एंजॉय करते थे, सेम टाइप की लाइफ को दोबारा देना इज नोन एज रिहैबिलिटेशन। Is it this? Don't confuse it with the alcoholic rehabilitation. It is rehabilitation where, due to the disaster impact, the normal routine of the life is disrupted, and you are not able to continue your basic routine. And in disaster management, we re-establish the old or pre-disaster life. Is this point clear? Is this point clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Now what is the next? Then we have to see what are the impacts. अब डिजास्टर मैनेजमेंट में हम ये भी देखते हैं, अगर डैमेज हो गई, कितनी डैमेज हुई, या फिर उस इम्पैक्ट को कैसे हमको कम करना है, रिस्क को कैसे अवॉइड करना है। सपोज एक जगह है जहां पर हमेशा फ्लड आता है, तो उसके लिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएंगे ताकि या तो उधर से लोगों को हम मूव करके किसी और जगह में सेटल करें, या उस एरिया में कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन करें ताकि वहां पर बाढ़ ना आए। तो दिस इज अबाउट रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हैजर्ड, then minimizing economic and environmental losses. Then one more important thing is providing the immediate response. देखिए, अगर कहीं पर समझ लीजिए, in your newspaper most of the time we hear about the cases of boat capsizing. What is boat capsizing? जब बहुत लोग जो होते हैं जहाँ पर फेरी करते हैं इन बोट्स, many times बोट्स जो हैं वो डूब जाती हैं। तो उधर क्या होता है, अगर इमीडिएटली जाकर लोगों को निकाला नहीं जाएगा तो देयर विल बी द लॉस ऑफ द लाइफ्स। सो इमीडिएटली रिस्पांस देना भी डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है। ऐसे जगह पर जहां पर डिजास्टर होते रहते हैं, वहां पर स्पेशल फोर्सेस, जिसको हम एनडीआरएफ बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वहां पर डिप्लॉय की जाती हैं ताकि इमीडिएटली लोगों को रिस्पांस मिल सके। आपने देखा होगा जहां भी अर्थक्वेक आते हैं वहां पर एक ऑरेंज कलर की जैकेट वाले बहुत लोग आपको नजर आएंगे। एक फोर्स है ये, इसकी 18 बटालियंस हैं जिसको हम एनडीआरएफ बोलते हैं। दे आर स्टेशनड इन होल ऑफ इंडिया। 18 बटालियंस हैं और पूरे इंडिया में 18 जगह पर ये स्टेशन है। जहां भी कभी कोई ऐसा डिजास्टर आता है तो दे आर द फर्स्ट पीपल टू रीच। इसलिए पहुंचते हैं ताकि जो डेथ्स हो चुकी हैं उनको डेथ्स का नंबर ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए। अगर कहीं कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है तो बिल्डिंग से लोगों को निकाला जाता है। अगर बोट डूब गई है तो जो डूबे हुए लोग हैं उनको फटाफट ट्रीटमेंट दी जाती है, उनको फटाफट वहां से उस सिचुएशन से निकाला जाता है। तो इमीडिएट रिस्पांस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन इवैक्यूएशन का तो आपको मतलब पता है कि लोगों को उस हैजर्डस सिचुएशन से निकालकर सेफ प्लेस में मूव करना, और प्रॉपर अगर किसी को चोट लग गई है, किसी को इंजरी हुई है तो उसको मेडिकल हेल्प पहुंचाना। और बेसिक अमेनिटीज में क्या आता है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, शेल्टर प्रोवाइड करना। ऑल दीज थिंग्स they are included in disaster management. Is this point clear?
ये डिस्कशन टिल दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ma'am. Now Yes, let us see next. अब अगर हम इसको टेक्निकली जो हमने ये मैंने आपको बेसिक चीजें बताई ना, ये चीजें जो हैं ये एक साइकिल है। अब हर चीज जो है एक पर्टिकुलर हम लोग एक सिस्टम से करते हैं, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। दिस होल साइकिल इज नोन एज डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। मैंने इसको इंटीग्रेटेड क्यों बोला? व्हाई आई हैव कॉल्ड इट इंटीग्रेटेड? बिकॉज इट इज नॉट अ one step, it is a multi-step process where lot of activities they are taking place, and every activity has to be it has to be communicated at all the proper levels, and it has to, the information has to be properly spread, it has to be disseminated at all the levels. So it is the integrated disaster management cycle. This start from the response. Response means where the disaster has struck, you have to provide immediate facilities. Immediate facilities इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं ताकि नंबर ऑफ डेथ्स, जहाँ लॉस जो है वो इंक्रीज ना हो। देन रिकवरी, रिकवरी में हम क्या करते हैं? रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि जो डैमेज हो चुका है उसको दोबारा से उसी प्रीवियस स्टेट में उसको हम रिकवर करते हैं। मिटिगेशन का क्या मतलब है? मिटिगेशन का मतलब है ऐसे स्टेप उठाना ताकि अगर डिजास्टर आए तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो। जैसे सपोज क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मिटिगेशन का क्या है। जैसे आपको पता है जब हम लोग मकान बनाते हैं तो हमारे मकान के लिए बनाने के लिए कुछ बिल्डिंग कोड्स हैं। यू नो व्हाट, देयर आर द मैनी बिल्डिंग कोड्स। बिल्डिंग कोड्स में क्या होता है कि आप मटेरियल किस तरह का यूज करेंगे, हम कितना उसमें सीमेंट ऐड करेंगे, कितना कंक्रीट होगा, कितना उसमें आयरन होगा, ये स्पेसिफिकेशन जो है दीज आर द मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। जैसे जब बारिश आती, जब फ्लड आता है तो फ्लड आने से पहले बहुत जहाँ पर रिवर्स जिन एरिया से पास होती है उन रिवर्स को क्लीन किया जाता है, उनको डी चैनलाइज किया जाता है, उनको डी सिल्टिंग की जाती है ताकि अगर बारिश आए तो रिवर जो है वो ओवरफ्लो ना हो और बारिश जो है वो उससे क्या हो, बारिश से फ्लड जो है वो लाइफ को डिस्टर्ब ना करे। तो ये जो एक्टिविटीज हैं दीज आर द मिटिगेटिव स्ट्रेटजीज। अब प्रिपेयर्डनेस जो है, प्रिपेयर्डनेस में मिटिगेशन जो है प्रिपेयर्डनेस का हिस्सा है। सो प्रिपेयर्डनेस जो है दिस इज द मेजर एक्टिविटी where we prepare ourselves, our community for we prepare ourselves for the future disasters. So now after that I will show you one. I was talking to you about the types of the disaster. There are, as I have told you, there are variety of डिजास्टर। मेजर क्लासिफिकेशन जो है वो नेचुरल डिजास्टर है और मैन मेड डिजास्टर की है। अब नेचुरल डिजास्टर वो हैं जो विच आर ड्यू टू दी, जो जिनका जो कॉजेटिव एजेंट है वो नेचर है, नेचर में होते हैं, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सपोज जैसे मीटरोलॉजिकल डिजास्टर है। मीटरोलॉजिकल कैसे है? जैसे साइक्लोन है। साइक्लोन क्यों आता है? ये क्लाइमेट की वजह से आता है, तो इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उसके बाद टोपोग्राफिकल होता है। टोपोग्राफिकल क्या होता है? जो जियोलॉजिकल डिजास्टर होता है। जैसे अर्थ के आपको पता होगा जो अर्थक्वेक है वो क्यों आता है? अर्थक्वेक इसलिए आता है क्योंकि हमारी जो अर्थ है, अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। बहुत मोटी मोटी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं
और ये जो प्लेट्स हैं दे आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन, और जब ये मूव करती हैं तो मूव करने से जो अर्थ की सरफेस है उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है, और ये वाइब्रेशंस जब ये ऊपर टॉप लेयर में आती है तो इट कॉजेज शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज नोन एज अर्थक्वेक। तो ये डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल डिजास्टर हैं। अब टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर कौन से होते हैं? टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर वो होते हैं जो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एरर की वजह से आते हैं। सपोज जो मैंने आपको एक एग्जांपल आपने किसी नाम लिया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, गैस लीक। हाँ, गैस लीक जो था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, यू नो ऑल ऑफ यू, ये आप सबने पढ़ा होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में सबसे डिजास्टर्स टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर था। इसमें ये जो इसमें मोर देन 5000 पीपल वर किल्ड एंड इसके इम्पैक्ट इतने ज्यादा हैं, रेडिएशन इम्पैक्ट इतने हैं कि वो अभी तक भी दे आर कमिंग, जो जनरेशंस हैं भोपाल में, जो वहाँ के जो लोग थे, दे आर स्टिल, अब थर्ड जनरेशन उसकी सेकेंड या थर्ड जनरेशन है, even those impacts are seen in the present generation. So technological, that is the case of technological disaster. Industrial disaster में explosion आते हैं, various types of leaks आते हैं, poisonous gases का leak आता है, warfares में क्या है, जो wars हैं, sabotage है, domestic wars हैं, ये सारी warfare का जो हैं, ये भी मैन मेड डिजास्टर्स हैं। अभी आप बताएंगे रिसेंट वॉर को भी कौन सी चल रही थी कोविड से पहले? व्हाट इज द वॉर व्हिच इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड? कैन यू नेम एनी वॉर? मैम यूएसए एंड इजराइल की। ट्रेड वॉर और कौन सी? हाँ, ट्रेड वॉर, वर्ल्ड वॉर। नहीं ट्रेड वॉर नहीं बेटे। सीरिया में जो चल रही थी, सीरिया में जो वॉर थी, यमन में जो वॉर थी, दे ऑल वर दे आर द एग्जांपल ऑफ वॉर्स। फिर जो कुवैत और उसमें कुवैत में भी वॉर थी, तो ये वॉर जो हैं देयर आर आल्सो मैन मेड डिजास्टर्स। देन अब टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर जैसे ट्रांसपोर्ट फेलियर्स आते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, एक्सीडेंट्स की, फायर्स हो गई, ये भी टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं। अब इंडस्ट्रियल डिजास्टर में जहां केमिकल लीक कर जाता है या रेडियो एक्टिव स्पिल रहता है, ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। वारफेयर में मैंने आपको बताया, वॉर्स आ गई, टेररिज्म आ गया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, सिविल अनरेस्ट आ गया, ये सारी चीजें जो हैं ये वॉरफेयर एग्जाम्पल्स हैं। देन मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ये मेट्रोलॉजिकल जो क्लाइमेट की वजह से आते हैं। सुनामी आप लोगों को पता होगा, हैव यू हर्ड व्हाट इज सुनामी? सुनामी क्या होती है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज सुनामी? सुनामी है high tide of water that that comes in the ocean. Yes, जब देखिए जो अर्थक्वेक है वो ओशियंस में भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ओशियंस के नीचे भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जब उधर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब उसमें वाइब्रेशंस आती हैं, तो उसके ऊपर जितना वाटर का कॉलम होता है, इस कॉलम में बहुत बड़ा एक जोल्ट आता है और इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ वेव। और जो ये वेव है वो सी के अंदर बड़ा क्वाइटली मूव करती है, बट विद अ ग्रेट स्पीड। और जब ये वेव मूव करती है और व्हेन इट रीचेस द शोर, इसका जो मोमेंटम है, इसकी जो वेलोसिटी है वेव की, वो बहुत बढ़ जाती है और उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है कि इट डिस्ट्रॉयज एनीथिंग व्हिच कम्स इन द वे। एंड व्हाई इट इज, ये जो सुनामी है, सुनामी इज अ जापानीज नेम, जिसको हम और ये जो सुनामी है,
इसके बहुत, अगर आप जब डिजास्टर मैनेजमेंट अपने अगले आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे, आई थिंक इट इज इन 5th सेमेस्टर, 5th सेम में आप ये सब चीजें जो हैं डिटेल में पढ़ेंगे। सुनामी कैसे आती है, उससे कैसे बचाया जा सकता है, साइक्लोन्स कैसे आते हैं, हरिकेन्स कैसे होते हैं, साइक्लोन क्यों आते हैं, ब्लिजर्ड क्या होता है, हेल स्टॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको तब जाके क्लियर होंगी। अब जो ये देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये पढ़ना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। मेजर डिजास्टर हैं इंडिया में, ये देखिए कितना लॉस होता है इनसे। ये 2000 जो लास्ट जो अभी ये जो है ये दिस हैज नॉट टेकन रिकॉर्ड ऑफ द लास्ट 20 years, बट जो 20 साल पहले एक भुज में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। नाउ सी दी डेथ्स 13,805। इसके अलावा जो और जैसे साइक्लोन्स हैं, अर्थक्वेक हैं, ड्रॉट्स हैं, ये इंडिया में बहुत रिकरिंग है। इंडिया में एक टाइम ऐसा था जब फैमिन्स बहुत ज़्यादा आते थे, फैमिन से बहुत डिस्ट्रक्शन होती थी, और नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड से बहुत डिस्ट्रक्शन होती है। अच्छा, ये मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। हम इंडिया को हम डिजास्टर वन ऑफ टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया आता है, बिकॉज वी आर दी डिजास्टर प्रोन कंट्री इन द वर्ल्ड। हम डिजास्टर प्रोन कंट्री है क्योंकि बाय इट इज बिकॉज 16% हमारी जो लैंड है इट इज प्रोन टू अर्थक्वेक, 12% लैंड जो इंडिया की है इट इज प्रोन टू फ्लड्स, 3% लैंड इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड व्हाट इज दिस, लेट मी व्हाई दिस इज कमिंग। सो आप ये बात ध्यान रखिए कि इंडिया इज वन ऑफ द डिजास्टर मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री, वन ऑफ द टॉप 10 डिजास्टर प्रोन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब ये डिजास्टर, इसमें जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती थी। व्हाट इज दैट? यस, अब डिजास्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि वी नीड द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन। गवर्नमेंट की हेल्प के बिना या एनजीओस की हेल्प के बिना या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की हेल्प के बिना डिजास्टर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सो व्हाट कैन, हाउ टू प्रिपेयर, गवर्नमेंट अपने आप को कैसे प्रिपेयर करती है? तो अब आपको मैं इसकी बताऊं कि 3 लेवल पर हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में चलता है। मीन्स देयर इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, जिसको मेन जो मिनिस्ट्री है जो डिजास्टर्स को पूरे इंडिया के में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट है, एक सेक्शन क्रिएट किया गया है जिसको हम बोलते हैं NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दिस अथॉरिटी इज द unique, it is the main nodal agency for which is responsible for the disaster management in India। और इसके अंडर जो है इसके अंडर बहुत से इसका जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके साथ एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी उनको हेल्प करती है। और ये जो NDMA है ये पूरे कंट्री में डिजास्टर में रिस्पॉन्स, डिजास्टर में रिहैबिलिटेशन, डिजास्टर में मिटिगेशन, उसके लिए पूरा प्लान, कितना पैसा स्टेट्स को देना है, किस किस स्टेट्स को कितना पैसा देना है, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाएगी, कौन से इंस्टीट्यूशन है जो कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, उसके लिए ये प्लान बनाया जाता है। All this plan is how the government prepare itself for the disaster management। इसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे स्टेशंस हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो पर्टिकुलरली एक टाइप के डिजास्टर्स को के बारे में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं कोविड की।
कोविड के लिए विच इज द मिनिस्ट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सी मिनिस्ट्री कोविड के बारे में सारे प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं, कौन बना रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग। ये जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री पूरा प्लान बनाती है। अच्छा, अब इसके बाद जो एक चीज में देखिए, कोई भी जो डिजास्टर के बारे में बात कंप्लीट नहीं होती है जब तक हम डिजास्टर मैनेजमेंट की, जब हम कोविड की बात ना करें, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कोविड, WHO ने कोविड को कब पेंडेमिक डिक्लेयर किया था? व्हेन वाज इट डिक्लेयर्ड पेंडेमिक? जैन के एंड में, जैन के एंड में, 30th जैन इसने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। एंड उसके बाद यू नो हाउ मच, कैन यू टेल मी, अगर आप, मैं जैसे हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर, मीन्स व्हाट इज द टॉपिक ऑफ अ डिस्कशन, कि हमने हम लोग अपने आप को हाउ टू प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर दी डिजास्टर्स। अब मेरे को बताओ, अगर इतनी प्रेपरेशन हमने फर्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय अस टू प्रिपेयर फॉर दिस कोविड? क्या किया था हमने सबसे पहले? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन? कैन एनीबडी? मैम फर्स्ट इट वाज जनता कर्फ्यू एंड देन लॉकडाउन। फर्स्ट वाज द लॉकडाउन। अब लॉकडाउन, व्हाई लॉकडाउन वाज डन? व्हाई लॉकडाउन वाज डन? To prevent the spread of the pandemic. हाँ, it was first, it was lockdown because spread रोकना था, but at that time it was not as contagious as it is today. Why that lockdown was done? Lockdown was done for preparation, because we were not, the world was not prepared for this health emergency. उसके लिए हम लोग रेडी नहीं थे, गवर्नमेंट रेडी नहीं थी। तो क्या किया? What government did? What was the preparation done? Can you tell me what we have done in last 6 months? Can you know the? आप बताएंगे मुझे, हमने हमारी जो NDMA है, जो हमारे बाकी जो ICMR है, इन्होंने क्या क्या किया है? If you will, देखिए, जिस दिन पहला लॉकडाउन का पहला डे था, that was I think 21st March, 22nd March. What was the date? What was the day? उस टाइम 24th March. 24th, yes. 24th March को अगर हम बात करें तो 21st March. हाँ, अगर उस डे को हम देखते हैं, उस डे में अगर, और जितनी हमारी पॉपुलेशन है और जितनी हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थी और जितना हमें डेंजर था, we were sitting on a volcano. हमने इन 6 महीनों में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आप को प्रिपेयर किया। अगर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या प्रिपेयर किया है, तो नाउ एट दिस इज द स्टेज व्हेन वी कैन, अब आज की डेट में, व्हाई देयर आर मींस, इफ आई आस्क यू, क्या हमने जो प्रिपरेशन की, आर वी सेटिस्फाइड विद दैट प्रिपरेशन? डू यू थिंक enough has been done? First say me, first give me your opinion. No. क्या हमने जो preparation की है, क्या ये sufficient है? Is it enough? Or are you satisfied government response to this disaster? No ma'am. No. Why you are not satisfied? Can you name? Can you give reasons? Ma'am, from their side, they did the best thing as they keep the lockdown from 24th only in Delhi, but there are many problems as because of people are not following it and all. As far as my information goes, we have prepared ourselves very diligently. अगर मैं, yes ma'am, I will list down, I can give you many example which shows
that we have been able to control this disaster. अगर WHO ने बोला था कि we are most prone country और हमारी जो कैजुअलिटीज थी वो बहुत फोरकास्ट की गई थी, बट अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में व्हाट इज द कैजुअलिटी, कितनी कैजुअलिटी है इंडिया की, कितनी है? एक्चुअल तो पर्सन रिपोर्ट नहीं की गए हैं, फेक है जितने भी अभी भी हैं। अब व्हाट डू यू मीन के ये डाटा ठीक नहीं है? यस मैम। डाटा अबाउट कैजुअलिटीज? यस मैम। यू कैन नॉट क्वेश्चन डेटा यार, वो शेयर करे गवर्नमेंट ने, वो राइट ही होगा, ऑथेंटिक होगा ना। अरे नहीं, मैं एक्चुअली उस पॉइंट पे नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिकॉर्ड हुआ डाटा वो गलत है, क्योंकि वो एक्चुअल डाटा नहीं है, हुआ बहुत ज्यादा है लेकिन रिकॉर्ड कम हुआ। Listen, I will tell you what is the right picture. हम लोगों में एक बेसिक प्रॉब्लम है कि हम लोग ना इस चीज को हमने स्टिग्मेटाइज कर दिया। किसको? कोविड को। क्या हुआ कि जिस घर में क्या होता था, इनिशियली गवर्नमेंट क्या किया था कि देयर वाज एक लेबल बाहर, घर के बाहर वो कर देते थे, घर को सील कर दिया जाता था, बिल्डिंग्स को सील कर दिया जाता था, घर के दरवाजे को सील कर दिया जाता था। उससे क्या होता था, थोड़ी सी एक सोशल लेवल पर स्टिग्मेटाइजेशन हो गई। उसकी वजह से लोग जो हैं वो डरने लगे। पीपल वर नॉट वेरी मच विलिंग टू कम आउट इन ओपन एंड मूव टू दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनिशियली there was the problem of food, there was the problem of drinking water, there were many issues, but slowly the things were improved and the situation is much better. And now agar aaj ki if you talk about today, there are so many COVID dedicated hospital. आज की डेट में देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि आज की अगर हम देखेंगे, जैसे फर्स्ट डेडिकेटेड कोविड सेंटर जो बनाया वो रिलायंस ने बनाया। उसके अलावा जो डायग्नोस्टिक किट्स बनाई गई, जब हमने शुरू किया था तो किट का क्या रेट था? व्हाट वाज द रेट? क्या रेट था जो हम चाइना से? मैम आप बता दो, आप बता दो। 5000 रुपीज का था, 5000 रुपीज का था। और वो आज की डेट में क्या, उसका क्या रेट है? 1500 का रेट है। अब हमारे इंडिया में अपनी किट्स हम लोग बना रहे हैं, DRDO ने अपनी किट्स बनाई हैं। उसके अलावा जो जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि एज पर इफ यू गो बाय दी यूएसए के एक्सपीरियंस से अगर हम देखेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा कैजुअलिटी क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द वेंटिलेटर्स। अब इंडिया में आज की डेट में बहुत चीप वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, स्पेशल किट्स बहुत जिनको पीपीई किट्स बोला जाता है, ये हम लोग हमारी इंडिया में बन गई हैं। रोबोटिक्स अवेलेबल हो गए हैं जो थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं। तो वी हैव आज की डेट में अगर आपको अपना कोविड का टेस्ट कराना है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वी कैन इजीली go for that. So what the preparation has been done, this preparation is within these 6 months we have, as a country, we have prepared ourselves. Otherwise अगर ये preparation नहीं होती, जो cases बढ़े हैं, I will further clarify this, whatever the case, जो ये 80,000 to 90,000 जो cases बढ़ रहे हैं, it is not due to any folly from the government. It is we as an individual, we are not taking proper precautions, we are not maintaining social distancing, we are not wearing masks, we are not mask हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, we are not regularly washing our hands. ये मास्क वियर करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारा क्या एटीट्यूड है, वाई? क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी चीजों को लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। आप ये देखिए, फर्स्ट 3 months व्हेन देयर वाज अ लॉकडाउन, कितनी केसेस थे? हाउ मेनी केसेस वर देयर?
मैम Then- some thousands. some thousand. Why it multiplied because मैम क्योंकि लोगों ने सोचा कि अब तो ठीक है, अब तो नॉर्मल सी बात हो गई है। हाँ, because देखिए because of carelessness. fearlessness, we think nothing will happen to us, we are immune, हमारी immunity है, but you never know when। देखिए एक दिन में एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब हमारी इम्यूनिटी बहुत लो होती है एंड वी डोंट नो, हमें नहीं पता चलता, बट वी आर वेरी, हमारी इम्यूनिटी बहुत लो होती है और उस टाइम पर अगर वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो इट स्टेज, देन इट मल्टीप्लाई, फिर वो 3-4 दिन में वहां बैठता है और देन इट स्टार्ट रेप्लिकेटिंग। सो टेक प्रिकॉशंस। How can we prepare for the disaster? We have to take precautions. We have to follow the guidelines. जो guidelines इसलिए दी गई हैं because these guidelines are for ourselves. हम अपने को ही endanger नहीं करते हैं, we endanger our whole family. So take proper precautions. Wash your hands regularly. Whether you are in the home, जो आप बाहर से जो भी चीज जब भी whenever, देखिए life has to go, life has to move on। अब बाहर यूएसए में भी इतनी डेथ्स हुई, यूके में डेथ्स हुई, बट दे हैव ओपन देयर कंट्री, पूरा फ्री कर दिया है, पर देयर पीपल आर टेकिंग, वहां पर क्यों वो जो एक पीक था वो पीक के बाद व्हाई देयर इज केसेस वहां पर कम क्यों हुए? क्योंकि पीपल वर टेकिंग प्रिकॉशंस। इनिशियली वहां पर लोगों ने प्रिकॉशंस नहीं लिए। यूएसए में इतनी डेथ्स क्यों हुई, इतनी बड़ी, जिसका हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। यूएसए का आपको पता है जहां सबसे ज्यादा डेथ ग्रीक में हुई थी, इटली में। इटली का जो हेल्थ सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम इन द वर्ल्ड, इट कोलैप्स्ड। व्हाई डिड इट कोलैप्स? क्यों कोलैप्स किया? कैन यू टेल मी? मैम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बिकॉज लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग उसका मजाक उड़ाया। दे टुक द थिंग्स वेरी लाइटली। उनको लगा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ऐसा है, मतलब ऐसे ही है, ये कुछ नहीं है, इट इज अ नॉर्मल कफ एंड फ्लू। बट इट बिकेम वेरी सीवियर। वहां पर वो बहुत, क्योंकि वहां पर जो लोड ट्रांसफर हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायरस लोड बोलते हैं, वो जो लोड था वो इटली, यूएसए, यूके में बहुत ज्यादा था। इंडिया में हमारा थोड़ा इतना जो डेथ्स हैं वो इसलिए नहीं हुई हैं। एक तो पहली बात है बिकॉज वी आर टेकिंग स्पाइसेस, यू टेक, हम हर्बल मेडिसिन्स बहुत लेते हैं, हमारा आयुर्वेदा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक प्रिकॉशंस, टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। जो हमारी आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं उनको रेगुलरली इनटेक कीजिए, एंड यू सी दैट योर एल्डर्स एट योर प्लेस आर आल्सो टेकिंग दोस हर्बल इम्यूनिटी टैबलेट्स। आप यू कैन गो फॉर रामदेव जी, पतंजलि की भी जितनी भी वो हैं जो उन्होंने इम्यूनिटी मेडिसिन्स दी हैं, उनको लीजिए। गाइडलाइंस को प्रिस्क्राइब, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, एंड मेक अदर्स, दोज हु आर नॉट फॉलोइंग, जस्ट आस्क देम टू फॉलो। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदरवाइज यू नो हमारी जो इकोनॉमी है वो 10% श्रिंक कर गई है। यू नो, आर यू अवेयर ऑफ दिस? यस मैम। अवेयर ऑफ दिस? एंड yes ma'am. As the student, as the citizen of this country, we have moral responsibility of saving our country. We have to save our nation. How will we save our nation? Unless until, अगर हम खुद ही कोई खुद केयरफुल नहीं है, तो then how can we ask others to be careful? How many of you are taking precautions, due precautions? Yes ma'am, I take precautions. But you have, yes ma'am, I do. And you have to see that every neighbor of yours,
every person who is walking on the road, if he is not taking precaution, if he is not wearing the mask, start one movement. कितने 5 रुपए का एक वो आता है मास्क, क्या रेट है एक मास्क का? मैम 10 रुपए का आ जाता है। 10 रुपए का हम क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कुछ 20-25 मास्क क्वालिटी पे डिपेंड करता है हल्का सा। वॉक करने पर जाओ और वॉक करते टाइम आपको जो भी आदमी बिना मास्क के मिले उसको वो गिफ्ट कर दो। दैट इज वेरी स्मॉल स्टेप। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 10 अगर 20 मास्क आएंगे कितने के आ जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए का, है ना? दिस इज द मनी, दिस मच, एंड यू नो हाउ मच आप कितना उससे कितना स्प्रेड जो है वो रोक पाएंगे। सो कंट्रीब्यूट फ्रॉम योर साइड, जितना आप कर सकते हो आप उसको, आप कंट्री के लिए ये काम करो। घर में जो भी वेजिटेबल्स ला रहे हो, जो भी सामान आता है, उसको डीसैनिटाइजेशन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। आर यू डूइंग दैट? या आपके सिर्फ मदर और फादर ही वो काम करेंगे? यू हैव टू डू। यस मैम, करते हैं। यस मैम। Yes, that's very good. You have to do it. So, you know, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, हम में बहुत स्ट्रेंथ है, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट कैन रिकवर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ जोल्ट। हमारी हिस्ट्री भी हमें ये बताती है कि वी कैन ओवरकम एनी टाइप ऑफ। हमारी कंट्री में बहुत तरह के डिजास्टर आए हैं, बट दिस इज दी, ये जो कोविड है ये वो पेंडेमिक है जिसने हमारी जो लोअर क्लास है, जो हमारी वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको सबसे ज्यादा हिट किया है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, वी हैव टू हेल्प टू सी दैट दीज पीपल डू नॉट सफर मोर। जैसे भी आप हेल्प कर सकते हो, जिस तरीके से जो आपकी विद इन योर रिसोर्सेज, आप जो जिसकी हेल्प कर सकते हो, डू इट, गो फॉर इट। एंड जब हम सब लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे, रिजल्ट विल बी वेरी गुड, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। एंड आई होप कि देयर विल बी अ टाइम हम जब बिल्कुल कोविड फ्री हो जाएंगे। अभी स्टिल वी आर रीलिंग अंडर लॉट ऑफ कोविड केसेस, पर हमारी एक चीज हमें थोड़ी सी, देयर इज अ रिलीफ दैट आवर मोर्टेलिटी रेट इज वेरी लेस। मोर्टेलिटी रेट जो है, हो सकता है कि हमारी जो एक्टिव केसेस जो हैं लोग ना बता रहे हों, पीपल आर ट्रीटिंग देमसेल्व्स एट होम, होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया है, बट मोर्टेलिटी रेट इज, बहुत लोगों में तो ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस की वजह से हो सकता है कि मोस्ट ऑफ यू हैव इवन हैड दैट अटैक एंड इट हैज लेफ्ट यू। हो सकता है हमारी हर्ड इम्यूनिटी आ गई हो, बट स्टिल वी हैव टू वर्क फॉर इट। वी हैव टू सी छोटे छोटे हम लोगों के स्टेप्स जो हैं, दे विल ब्रिंग अ बिग चेंज एंड इट विल हेल्प अस, ऑल ऑफ अस, टू रिकवर फ्रॉम दिस डिजास्टर. So with this, I hope you enjoyed this. I don't know whether you enjoyed, but I tried to share with you the information which I had regarding. वैसे ये information जो है, this is a full course where we spend 40 lectures in discussing what are the disaster and what are there was a lot of things which also I wanted to discuss, but because of the time we cannot discuss each and everything, but major things I have conveyed to you and hope. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you ma'am. And I was just watching that none of you is complaining. Ma'am, time ho gaya. None of you said. It's so nice of you. I'm still here. I enjoy. मजा आता ना आपकी क्लास में? हाँ? मैम आपकी क्लास में मजा आता है? Did you like the class? It was very interesting. Yes ma'am, I like. Yes ma'am. Yes ma'am. It was very nice.
नेक्स्ट नाउ मैं आपको बता दूं कि हमारी आई विल बी टीचिंग सेक्शन मेरे पास जस्ट मेरे सेक्शन कौन से हैं इन 2 सेक्शन ऑफ BBA 1 I will be teaching business communication and I hope we will have a very nice time. Thank you, ma'am. Learning. Ma'am, Thank you very much. First, let me log out. Let me download the attendance. That is very can anybody? Yes, I will. Just hold on. Don't move away. Don't move out. Yes, I have downloaded the attendance. Thank you. बेटे attendance मैंने download कर ली है. एक मिनट. Let me see. I think it has been downloaded. Thank you, ma'am. Thank you, बेटे. You can. Thank you, ma'am. Thank you all. Nice. Thank you, ma'am. Nice talking to you. Thank you, ma'am. Okay, bye. Thank you, ma'am. Thank you. ma'am, can we leave? Yes, बेटे. Sure. You can leave. Okay, ma'am. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you.